Assalamu alaikum dear students. Today we are going to deal with the particulate air pollutants and the radioactive air pollutants. आपको याद होगा इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग द गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें हमने देखा कि गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स दे आर ऑफ सिक्स मैन कैटेगरीज, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, and volatile hydrocarbons, these fluorides as well as photochemical oxidants. आज हम देखेंगे कि जो ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स है, एक्चुअली व्हाट आर दीज पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स. जहां तक इन पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, they actually are in the form of solid particles or in the form of liquid droplets, and these particulate air pollutants, they get added or they are released into the atmosphere due to the combustion of fossil fuels in the automobiles and industries. They actually get released into the atmosphere by certain operations like mining, blasting, drilling, grinding, etc. And apart from that, these some particulate matter or some particles which pollute the air, they are added by the living organisms, which includes the spores, cystis, bacteria, pollen grains, etc. Let us see how we can classify these particulate air pollutants. Depending upon the size, these these particulate matter or these particulate air pollutants, they can be categorized or they can be subdivided into three main types. One is known as the satellable air particles, satellable particle pollutants, non-satellable particulate pollutants, and suspended particulate pollutants or suspended particulate matter. First, what are the satellable air particles? What are the satellable these pollutant air pollutants? Satellable these pollutants, satellable air pollutants. These satellable air pollutants here, these are the particles which when released into the air get settled. They are in the city layer for longer duration, और after जब ये रिलीज होते हैं ये सैटेलेबल पोल्यूटेंट्स, ये बिल्कुल हवा में they get settled down there, क्योंकि इनका साइज जो होता है that is greater than 10 microns, 10 micrometers, 10 raised power minus 6 meters. And these includes the sand particles and water droplets. And what are the non-satellable particulate pollutants? जो non-satellable particles होते हैं, basically there are many particles which pollute the air and they do not get settled down they do not get settled down in the air at all. तो इनका साइज जो होता है that is less than 1 micrometer
तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें टोबैको स्मोक आता है। जो टोबैको स्मोक होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर एंड दे डू नॉट गेट सेटल्ड डाउन, दे आर नॉट सेटलेबल टोबैको स्मोक। एंड जहां तक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, देयर आर certain pollutants which possess the particulate nature. They after release into the atmosphere get suspended in the air and remains there for longer duration in this suspended form. इनको हम कहते हैं suspended particulate matter। जहां तक इन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का ताल्लुक है, यहाँ एंड इन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स का ताल्लुक है, इनका साइज जो होता है दैट रेंज समवेयर बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। ठीक है। हाँ, जहां तक इस सस्पेंडेड, हाँ, जहां तक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का ताल्लुक है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज द डस्ट। डस्ट बेसिकली ये तो सॉलिड फॉर्म में हो, ये भी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन दे आर इन सॉलिड फॉर्म एंड इनका साइज भी होता है ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर बट लेस देन 10। तो दूसरा जो इसमें आएगा दैट इज मिस्ट। मिस्ट इज इन लिक्विड फॉर्म। दीज आर द पार्टिकल्स, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैविंग द साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल, डस्ट और मिस्ट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी पार्टिकल्स इन द एयर which is having the size less than 1 micrometer. These particles are called aerosols. इनको हम aerosols कहते हैं। aerosols के बारे में भी हम बात करेंगे। First we will see what are these dust particles. Dust particle किसको हम कहेंगे? Dust particles बेसिकली जो ये डस्ट होती है, These are the suspended particulate matter. ये क्या होती है? Suspended particulate matter ही ये होता है। लेकिन यहां पे जो ये particles होते हैं they are in solid form and their size is less than 1 micrometer. Their size is more than 1 micrometer but less than 10 micrometer. ये जो डस्ट है, जहां तक इस मतलब डस्ट का ताल्लुक है, दिस डस्ट दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड विच आर रिलीज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो जहां तक इन डस्ट पार्टिकल्स का ताल्लुक है, इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल सूत एंड फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश यू नो दैट इज रॉक, या सूत जो होता है ये जिसको हम कहते हैं ये कालक जिसको हम कहते हैं ना, पढ़िया था हाय वनो, वो सूत हो या फ्लाई ऐश है। एक्चुअली दीज आर ऑल्सो द डस्ट पार्टिकल्स विच आर एक्चुअली रिलीज्ड ड्यू टू द कंबशन इन ऑटोमोबाइल्स एंड दीज इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से ये रिलीज होते हैं। कौन से? फ्लाई ऐश एंड सूट, यानी कि इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स। कैसे? ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसी तरह एक और डस्ट है जिसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल डस्ट, जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में
through different industrial processes or through different metallurgical processes. इस डस्ट में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? डस्ट पार्टिकल्स ऑफ lead, arsenic, cadmium, copper, mercury. हाँ, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं these are the metallic dust, or these include, or these are called the metallic dusts, as they include the metallic particles which are released into the atmosphere through different metallurgical operations or metallurgical activities. तो ये दूसरी कैटेगरी है. तीसरी है जिसको हम कहते हैं एबस्टोस फाइबर्स. द एबस्टोस फाइबर्स, जो ये एबस्टोस होता है, बेसिकली एबस्टोस फाइबर्स किस मतलब इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं? मतलब जो जहाँ पे एबस्टोस इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब वहां से ये एबस्टोस रिलीज होता है. जो ये एबस्टोस होता है, these asbestos fibers, they are always heat resistant, they are hydrated magnesium silicates. ठीक है, तो ये भी एक किस्म की डस्ट होती है जिसको हम कहते हैं एबस्टोस फाइबर्स. यानी कि ये भी मतलब जहाँ पे ये मतलब जो एबस्टोस इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे एबस्टोस मिनरल का इस्तेमाल होता है, वहाँ से बहुत सारे ये फाइबर्स रिलीज होते हैं. तो इसी तरह एक और है, इसको हम कहते हैं स्टोन और सैंड पार्टिकल्स, जिनको हम सिलिकेट्स भी कहते हैं. सिलिकेट्स, SiO2. ठीक है, ये स्टोन और सैंड पार्टिकल्स, they are actually released into the air or into the atmosphere through the stone grinders or from the stone grinders. ठीक है ना, जहाँ पे स्टोन ग्राइंडिंग होती है, उससे वहां से ये स्टोन पार्टिकल्स और द सैंड पार्टिकल्स दे गेट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. इस तरह एक और डस्ट है कॉटन डस्ट. कॉटन डस्ट, दीज आर एडिड फ्रॉम द टेक्सटाइल मिल्स. जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं वहां से कॉटन डस्ट रिलीज होते हैं, जिनको कहते हैं टेक्सटाइल मिल्स. टेक्सटाइल मिल्स, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डस्ट होते हैं, these are the suspended particulate particles, or this is the suspended particulate matter which is having the solid form, and their size is always greater than 1 micrometer but less than 10 micrometers. इन डस्ट पार्टिकल से इनके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. मतलब दे कॉज सर्टेन टाइप्स ऑफ दैट, दे कॉज सेवरल हार्मफुल डिजीजेस. तो उनसे बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती है. लेट अस हैव अ लुक व्हाट आर द वेरियस problems, or what are the various effects which are caused by these different categories of the dusters, like asbestos, silicates, or the sand particles, stone particles. इसी तरह हमने देखा कि मेटालिक पार्टिकल्स, तो इनसे बहुत सारी जो डिजीज होते हैं वो पैदा होती है. लेट्स हैव अ लुक अपॉन दिस वेरियस डिजीज. एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस और लंग फाइब्रोसिस. न्यूमोकोनियोसिस और लंग फाइब्रोसिस, ये बेसिकली जो लोग जो टेक्सटाइल मिल्स में काम करते हैं, जो वर्कर्स वहां पे होते हैं, इनको अक्सर बेशतर ये डिजीज होते हैं, ये बीमारी लगती है. क्योंकि इससे क्या होता है, एक्चुअली इट इज द प्रॉब्लम, इट इज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द लंग्स. यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट एक्चुअली कॉजेज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दिस न्यूमोकोनियोसिस और लंग फाइब्रोसिस. तो ये कहां पे आप होते हैं? दिस इज एक्चुअली इन द दिस इज कॉज्ड ड्यू द कॉटन दीज डस्ट, और बाय द कॉटन डस्ट, and it is always contained, or it is always actually observed in the workers which are working in these cotton mills, or in these textile mills. तो इसी तरह एक और डिजीज को हम एबस्टोस, ये एबस्टोस फाइबर्स से होते हैं. एबस्टोस फाइबर्स,
जहां तक एबोस्टोस का ताल्लुक है, इट इज ए मिनरल विच इज ऑलवेज हीट रेजिस्टेंट, इट इज हीट प्रूफ और इट इज थर्मल रेजिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये एबोस्टोस जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है एंड इट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इससे भी एक मतलब जो डिजीज होती है वो पैदा होती है कि इस डिजीज से क्या मतलब जो ये भी इससे क्या होता है लेटर ऑन, इससे फिर लंग कैंसर भी हो सकता है इस डिजीज से, जिसको हम एबोस्टोसिस कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय द एबोस्टोस फाइबर्स विच इज सॉर्ट ऑफ डस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द एबोस्टोस इंडस्ट्रीज। तो इस तरह एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं बिसिनोसिस, ठीक है ना। ये बिसिनोसिस जो डिजीज है इट इज एक्चुअली इट इज कॉल्ड द ब्राउन लंग डिजीज, इसको किसी वक्त मंडे फेवर भी कहते हैं। ये एक्चुअली ये भी इन्हीं जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, जो ये टेक्सटाइल मिल्स होते हैं या कॉटन मिल्स जो होते हैं, वहां से ये डिजीज पैदा होती है। इसको हम कहते हैं ब्राउन लंग डिजीज या मंडे फेवर। देखो एक और है, इसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द सैंड पार्टिकल्स और द सिलिकेट्स। ये सिलिकेट से होती है। बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटर्स रॉट। इसको पोटर्स रॉट भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं, इसको हम मतलब पोटर्स रॉट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज टाइप ऑफ प्रोफेशन और दिस ऑक्यूपेशनल डिजीज विच इज ऑलवेज contracted or which is always observed in the workers which are working in these glass industries। तो वहां पे ये डिजीज उनको लगती है। तो ये भी इससे भी यहाँ पे बेसिकली जिसको ये डिजीज होती है, ये सिलिकोसिस ड्यू टू दीज सिलिका पार्टिकल्स, वहां पे भी एक्चुअली द लीजन्स are produced or they develop the lesions on the lungs, on the lining of the lungs। तो वहां पे वो जख्म lungs के ऊपर लगते हैं and this causes the damage to the lungs and which ultimately results in the difficulty or in the respiratory problem, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सिलिकोसिस, जो सिलिका डस्ट से होती है या सैंड पार्टिकल सिलिकेट से होते हैं, सिलिका से SiO2 से, ठीक है। And one more disease which is caused by these dust particles, that is known as paludism, or it is sometimes known as Saturnism और Saturnism। तो ये जो paludism और Saturnism जो है, it is a disease which is caused by the lead particles। आपको पता है जो ये lead particles या जो ये lead dust होती है, ये कहां से रिलीज होती है। बेसिकली this is actually released from the petroleum, this is from the automobiles and the industries where the petroleum is used as a fuel। जो चीजें ऑपरेट होती हैं पेट्रोलियम से, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर एक चीज होते हैं जिसको हम कहते हैं टेट्राइथाइलेट या टेट्रामिथाइलेट, एक केमिकल कंपाउंड इनके अंदर होता है। वहां से बहुत क्वांटिटी में, बहुत कंसंट्रेशन में ये लेड रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ना मतलब फिर। और ये एक्चुअली जो ये मतलब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड, वहां से भी लेड रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। देखो इस
लेड पार्टिकल्स जो है ना, ये फिर इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, दे फाइंड देयर पैसेज इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड चेन। तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं लेड पॉइजनिंग और पलमिज्म, जो कि लेड पार्टिकल से होते हैं और लेड डस्ट से होती। देखो इसके सिम्टम्स पर क्या होते हैं, इस पलमिज्म और सैचरनिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पहले पहले क्या होता है, जब ये माइल्ड स्टेज में होते हैं तो उस वक्त हेडेक होता है ज्यादा, मतलब सिर दर्द रहता है। इसी तरह इससे लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, मतलब जो भूख है वो खत्म होती है। इसी तरह इसे इंसोमनिया यानी कि स्लीपलेसनेस कंडीशन पैदा होती है। तो एक और प्रॉब्लम इससे जो होती है जिस पलमिज्म से, कि इससे मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता है। इससे विजन जो है दैट गेट्स रिड्यूस्ड एंड देयर आर so many actually symptoms of this very disease that is called this phalamism। इससे एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, या हम ये कहेंगे कि इससे मिसकैरेज भी होते हैं, मिसकैरेज, या इससे ये हम ये कहेंगे कि एक और इससे डिजीनेस भी इंसान फील करता है। डिजीनेस यू नो एक्चुअली जब वो मतलब हेडेक रहता है, यानी कि एक पर्सन वो चकराता है, इससे उसको ये मतलब वो अपनी बैलेंस को खो देता है। तो इसी तरह जब ये एक्यूट मतलब व्हेन इट टेक्स एक्यूट फॉर्म, जब ये एक्यूट हो जाती है, एक्यूट फॉर्म में इससे क्या होता है, पहले एक्चुअली स्टेज इज विच इज कॉल्ड द स्टोफर स्टेज, दैट इज डेज्ड स्टेट। डेज्ड स्टेट क्या होते हैं, दिस इज द एक्चुअली मेंटल नम्बनेस है ना। तो दूसरा स्टेज फिर इसके बाद आता है जो वो कोमा में चला जाता है। द पेशेंट एक्चुअली गेट्स इनटू कोमा, मतलब वहां पे इसको वो हम ये कहेंगे ना, वो मतलब बेखुदी की नैन में चला जाता है, मतलब वो बेखुद होता है, इसको मतलब हम ये कहेंगे कोमा में वो चला जाता है। एंड फाइनली a patient the death is the ultimate result of this disease, this very dangerous type of disease which is called a pulmonism or Saccharinianism. So this is regarding the various types of the dusts and the diseases which are caused। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसको हम डस्ट कहेंगे, अगर ये लिक्विड में आएगा तो इसको हम कहते हैं, तो देन इट इज नोन एज द मिस्ट। मिस्ट जो होता है, मतलब जब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स अपॉन द क्रॉप्स, वहां पे जो लिक्विड वो स्प्रे जो रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो द पोल्यूटेंट और दैट एक्चुअली गोज इनटू द एयर और इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज लेविशिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये उसको हम मिस्ट कहेंगे। तो रही बात मिस्ट की भी, ठीक है। अब एक और कैटेगरी मैंने आपको बताई थी एरोसोल। जहां तक एरोसोल्स का ताल्लुक है, एरोसोल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। These aerosols, this includes the chlorofluorocarbons and इसके अंदर हम देखते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, टोबैको, स्मोक भी इसके अंदर आते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली they result from the emissions of the jet aeroplanes। जेट से भी ये इमिट होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके अलावा दे आर यूज इन द रेफ्रिजरेटर्स। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हम रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड सो फार दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबस्टेंसेस आर कंसर्न्ड, दे आर वेरी हार्मफुल बिकॉज दे कॉज द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है ना, इनसे मतलब ओजोन की थिनिंग होती है, ओजोन लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दिस ओजोन लेयर इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड देयरफॉर इट प्रिवेंट्स the life on the earth from their harmful effects।
लेकिन ये वाले सब्सटेंस इसको डिप्लीट करते हैं। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी, दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, एक्चुअली दीज आर एक्चुअली एडेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं उससे एटमॉस्फेयर में ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स दे रिलीज होते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, बेसिकली दे कॉज द डैमेज टू द लंग्स, लेवर, फिर ये लंग्स, लेवर और इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। इससे एक्चुअली जो होते हैं ना, इससे डेवलप होती है स्किन पिगमेंटेशन भी, एंड इससे विजन भी बिल्कुल कम होता है। दीज polychlorinated biphenyls which are actually added into the atmosphere by the burning of the plastics, and this is another category of the aerosols. And one more is tobacco smoke. टोबैको स्मोक, बेसिकली जो टोबैको स्मोक होता है, तो ये टोबैको स्मोक जो है, इसका साइज, इसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है दैट इज आल्सो लेस देन 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे जो ये टोबैको स्मोक होता है, इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक केमिकल देखा गया है, इसको हम कहते हैं बेंजप्रीन। जो ये बेंजप्रीन है, it is carcinogenic in nature, it causes the cancers, and this is regarding the aerosols. तो इसके अलावा मैंने आपको हेडिंग में ही बताया था कि जो कुछ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रीन्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, जिसे इससे क्या होता है, दे कॉज when they get added into the atmosphere, into the air, and they cause many problems to the human beings. तो इससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि इनसे एलर्जीज होती हैं, इनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम मतलब टेक्निकली हम इसको कहते हैं हे फेवर, इसे होता है ही फेवर, ठीक है ना। तो दिस इज रिगार्डिंग द particles which are added by the living organism, that is plants as well as the animals. And मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम पढ़ेंगे पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स और रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने बात की। अब हम देखेंगे जो ये रेडियो एक्टिव एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये कहां से ऐड होते हैं। These actually are released into the atmosphere due to the nuclear explosions जो होता है रेडियो एक्टिविटी में, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं वहां से ये रिलीज होते हैं, या जो हम वेपन्स यूज करते हैं, जो हम न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स यूज करते हैं, मतलब वहां से भी ये रिलीज होता है ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ये पार्टिकल्स फिर दे आर वेरी डिट्रीमेंटल, दे आर वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन हेल्थ, दे आर कार्सिनोजेनिक, दे आर म्यूटाजेनिक, and many more. They cause a lot of the skin problems. So those actually who are working with these with the radioactivity, or who are working in the X-ray plants, they always suffers from the diseases which are caused by these harmful rays like X-rays, है ना, gamma rays, beta rays. तो उससे फिर ये problem होती है in persons में. And this is all regarding today's topic, that is particulate air pollutants and the radioactive air pollutants. Particulate air pollutants, now it is clear that these are of 3 types: suspended particulate matter, satellable particulate matter, unsettlable or non-settlable particulate matter. And apart from that, we have talked about the suspended
particulate matter in detail, what is dust, what is mist, what are aerosols, and what are their sources and what are their effects. And apart from that, we have talked a little bit regarding the particulate matter which is added by the living organisms. तो इसके बारे में भी हमने बात की इस टुडे मतलब आज के इस टॉपिक में. तो here today we will conclude here. Thanks. Fi amanillah.